Welcome to Rasashastra class. Kusro Bitya. Namaste. Myself, JBN Dr. Devasis Panigrahi, Faculty of Ayurvedic Science. Today, we are going to discuss session number 42 on Parada Jarana, Part 1. So, what is Jarana? Before this class, in the previous class, we have discussed about Murchana, Parada Murchana. Murchana and Jarana both are very important topics. Here, Jarana is the 13th sanskara among Ashtadasha sanskara, Ashtadasha Parada sanskara. In BMS syllabus, we have only 8 sanskaras. However, in Ashtadasha sanskara, after the 8 sanskara, there are certain other sanskaras. They are number 9, number 8, Dipana sanskara, number 9, Anuvasana sanskara, number 10, Gagana Bhakshana sanskara, number 11th, Charana sanskara, number 12th, Garbhadruti or Brahmana sanskara, and number 13th, is Jarana sanskara. The numbers may be changed according to authors like Rasarnava, Rasarudaya Tantra, Rasatna Samuchay, Rasandra Chudamani, Arvind Prakash, etc. Some have placed it in 40th number also. So before proceeding, you have to clarify that in syllabus, according to syllabus, we learn up to 8 sanskara, that is Dipana sanskara, and after that, here we are discussing on 13th sanskara, that is Jarana sanskara. And what is the importance? Without Jarana process, neither mercury can be used for therapeutics nor for Rasayana purposes. So, Jarana is the most. Either we have to give medicine for Roganasana, Roga Vyadhinasana, or for Rasayana purpose, we have to do Jarana. Definition. According to Arvind Prakash, Jarana hi nama Galana Patana Vyatirekena Grasta Ghana Hemadi Rasasya Purva Avastha Pratipannatva. What is the meaning? जारणा ही नाम, जारणा उसी को बोला जाता है जो गालन और पातन के बिना ही. तो गालन और पातन क्या है? व्हाट इज गालन? गालन इज फिल्ट्रेशन, टू फिल्टर मर्करी, एंड पातन, पातन इज सब्लाइमेशन और डिस्टिलेशन. सो विदाउट फिल्ट्रेशन और विदाउट सब्लाइमेशन, डिस्टिलेशन, when grasta ghana hemadi digested for mercury is digested with ghana, ghana is abraka sattva, hema adi gold etc, rasasya पूर्व अवस्था प्रतिपन्नत्व, रस अपने पूर्व अवस्था में ही रहता है. So when rasa or mercury completely digest the grasa of abraka sattva, that is ghana, gold, hema, adi, etc., other minerals also, and remains in its original form, purvavastha pratipannatvam, is known as jnana. However, on filtration, galana
और ऑन सबलाइमेशन पातन द डाइजेस्टेड मटेरियल घन और हेमादि etc. may be separated if not digested properly. So you have to listen carefully and understand it. अगर पारद दिया हुआ ग्रास मतलब खाना, डाइजेशन, क्या ग्रास है? अभ्रक सत्व और सोना, हेम आदि, इनको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर लिया है तो पारद अपना पूर्व अवस्था में रहेगा. सम कंट्रोवर्सीज ऑल्सो देयर. पूर्व अवस्था अप्रतिपन्नत्व, दिस ऑल्सो सीन इन सम क्लासिक्स. तो पूर्व अवस्था में नहीं रहेगा. तो पूर्व अवस्था क्या है? अगर हम इसी को ही लेते हैं तो मरकरी 100 ग्राम लिए थे, उस 100 ग्राम में हमने घन और हेम अगर 100 ग्राम दोनों मिला दिए तो टोटल 300 ग्राम हो गया. और ये 300 ग्राम को अगर मरकरी कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेता है तो ये पूर्व अवस्था, पारद अपने पूर्व अवस्था में रहेगा. यानी कि मरकरी तो 100 ग्राम था और अभ्रक सत्व 100 ग्राम और हेमो 100 ग्राम, तो ये दोनों को हम कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेगा पारद. तो पारद का वेट में और इसका रूप में, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा. यानी कि मरकरी उतने ही ग्राम की रहेगा, 100 ग्राम की रहेगा, तो पूर्व अवस्था में रहेगा. हालांकि कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि लिक्विड स्टेट में रहेगा, पर लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा. अगर ये डाइजेस्ट कर लेगा तो ये अमलगम ही होगा. और अगर इसको फिल्टर करने के बाद या सबलाइमेशन करने के बाद इसमें से अभ्रक सत्व या सोना सेपरेट हो जाता है तो इट इंडिकेट्स कि मरकरी प्रॉपरली इनको डाइजेस्ट नहीं किया है. प्रॉपरली डाइजेस्ट कर लेगा तो हम इसको सेपरेट कभी नहीं कर सकते हैं. एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं. जैसे आप लोगों में से काफी लोगों का अगर हम क्लास में वेट देखें, वजन देखें, तो अराउंड फॉर एग्जांपल 40 केजी सभी का आसपास होगा एवरेज. तो 40 केजी वेट है और आपका अगर एज 18 साल 19 साल है तो 18-19 साल में क्या आपने टोटल खाना पीना अगर वेट करें तो 40 किलो ही खाया है. जो आपका शरीर में वजन 40 किलो हुआ, आप हो सकता है 4 क्विंटल या 10 क्विंटल खाना खाए होंगे, पर आपने उसको डाइजेस्ट कर लिया और डाइजेस्ट करने के बाद आपका बॉडी उससे एनर्जी कन्वर्ट कर लिया, मसल बन गया और मसल या और भी टिश्यूज न्यू जनरेशन हुए और वो डेड भी होते रहे. ऐसे ही यहाँ पर अगर पारद ग्रास दिया हुआ जो डाइजेस्ट करने के लिए दिया गया है घन और हेम को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर ले तो अपने पूर्व अवस्था में ही पारद रहेगा. अपना जो भी वजन है उसी वजन में रहेगा, उसका वजन नहीं बढ़ेगा. और अगर हम उसको सेपरेट करना भी चाहें गालन और पातन के द्वारा तो ये सेपरेट नहीं होगा. डेफिनेशन 2. द्रुतग्रास परिणाम बिडयंत्रादि योगतः चारण उच्यते तस्य प्रकार संति कोटिश अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय. तो द्रुत करके मोल्टेन स्टेट में जो ग्रास दिया गया उसका परिणाम में, खाना खाने के परिणाम में परिपाक हो जाता है. तो बीड़ और यंत्र की योग से, तो द्रुत करके मोल्टेन करके ग्रास देंगे, उसका जो परिणाम होगा डाइजेशन होगा. कैसे? बीड़ द्रव्यों के साथ और विभिन्न प्रकार के यंत्रों के साथ. तो उसी को ही जारण बोलते हैं. तस्य प्रकार संति कोटिश. When metals and minerals digested on molten condition, Druta grasa with the help of Bida Dravya and various instrumentations like Kachapa Yantra, Baluka Yantra, Jaranartha Tula Yantra, etc. It is known as Jarana and it also have crores of varieties. So how it will have crores of varieties? Tasya prakara santi kotisha based on Bida. Bida Dravya बहुत प्रकार के हो सकते हैं. एक एग्जाम्पल आपको इसके आगे वाले श्लोक में हम देंगे. यंत्र, तो 3 यंत्र का उदाहरण आपके सामने है. जैसे कि कच्छप यंत्र, इसमें जारण होता है. जैसे कि बालुका यंत्र, इसमें जारण होता है. जैसे कि जारणार्थ तुला यंत्र, इसमें जारण होता है. और भी बहुत सारे यंत्र हैं जिसमें से हम जारण कर सकते हैं. और गर्भद्रुति और बाह्यद्रुति के आधार पर ये करोड़ों प्रकार से, क्रोर्स ऑफ टाइप्स में जारण किया जा सकता है. तो बीड़ा क्या है? क्षार.
अल्कली सब्सटेंस, अम्ल एसिडिक सब्सटेंस, गंध आदि गंधक आदि द्रव्य, सल्फर कंटेंट्स, मूत्रेश्च अष्टमूत्र का यूज होता है, पटुभिस्तता पटु लवण होता है, रस रसस्य पारद के ग्रासन के लिए, जीर्णार्थ जीर्ण डाइजेस्ट करने के लिए, तद्बीड़म परिकीर्तितम। तो ये एक रेफरेंस है। बीड़ का और भी बहुत सारे रेफरेंस मिलेगा, अलग अलग द्रव्य बीड़ हो सकते हैं। गर्भद्रुति ग्रस्तस्य द्रवणम गर्भे गर्भद्रुति उदाहृतम। So Garbhadruti is internal liquefaction, represents to the 11th of 18th alchemical purification process of the mercury. So Garbhadruti जो पारद के गर्भ में द्रुत जो किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, उसमें डाइजेस्ट कर लेता है, इसको गर्भद्रुति बोला जाता है। ऐसे ही बाह्यद्रुति बहिरेव द्रुतम कृत्वा घन सत्वादिकम खलु जारणाय रसेन्द्रस्य स बाह्यद्रुति उच्यते। तो बाहर ही जो घन सत्व अभ्रक सत्व आदि के द्वारा जारण किया जाता है रसेंद्र को पारद को, ये बाह्यद्रुति होता है। बाह्यद्रुति इज द एक्सटर्नल लिक्विफिकेशन, रिप्रेजेंट्स टू द 12th of 18th alchemical purification process of mercury with the help of अभ्रक सत्व। डेफिनेशन नंबर 3, सुते गंधादि भी निक्षेपा, पारद में गंधक आदि को निक्षेप करेंगे, तत्त विधि विशेषता अलग अलग प्रकार के विधि के विशेष से, जैसे कि कहीं बीड़ यंत्र, बीड़ अलग होगा, कहीं यंत्र अलग होगा, गर्भद्रुति या बाह्यद्रुति। गंधात जर्जयत यत्तु, तो गंधक जब जीर्ण हो जाता है, जरण तदि होच्यते, तो इसी को ही जारण बोला जाता है। रिजल्ट ऑफ जारण, जारण करने से क्या होता है? रसगुण बलि जारणम। रसगुण, रस कितने होते हैं? 6 प्रकार के रस होते हैं, तो 6 टाइम्स बलि जारण, बलि सल्फर को कहते हैं, गंधक को कहते हैं। 6 टाइम बलि जारण गंधक जारण, बिना बिना 6 टाइम गंधक जारण किए न खलु रुजाहरण क्षम रसेंद्र, कभी भी न खलु, कभी भी निश्चित रूप से रसेंद्र पारद रुजाहरण का नहीं करता है या रुजाहरण के लिए सक्षम नहीं होता है। यानी कि हमें अगर रोग नाशन क्षमता पारद में उत्पन्न करना है तो निश्चित रूप से हमें षडगुण 6 टाइम्स गंधक जारण करने के बाद ही आगे इसका जो कंपाउंड बनेगा उसी को मेडिसिन के रूप में देना चाहिए। सेकेंड लाइन, न जलद कलधौत पाकहीन, बिना जलद, न जलद, जलद अभ्रक के लिए बोला जाता है, अभ्रक सत्व। कलधौत गोल्ड के लिए बोला जाता है, पाकहीन बिना पाक किए सोने का, और अभ्रक सत्वता स्पृश्यति रसायनमिति प्रतिज्ञा, ये पारद रसायन प्रभाव भी नहीं करता है। यानी कि अगर हमें रोग नाशन के लिए यूज करना है तो निश्चित रूप से षडगुण बलि जारण हमें करना ही है, और अगर रसायन प्रयोग करना है तो इसको अभ्रक सत्व और सोने के साथ डाइजेस्ट करना है। विदाउट 6 टाइम्स गंधक जारण प्रोसेस द मर्क्यूरी विल नॉट बी एबल टू क्योर डिजीज, मीन्स should not be used for therapeutic process. Without digestion of अभ्रक सत्व or gold, it will also not effective as rasayana purpose. Another reference regarding the result, बसु विधि संस्कृते अपि सुत रस विबुधैर्हि हिंगुलत्थितवा। वसुविध, वसु अष्ट संख्या नंबर के लिए बोला जाता है, या तो अष्ट संस्कारित पारद ले लें या सुत विबुधैरि ही हिंगुलत्थित या हिंगुलत्थ पारद ले। रसगुण बलि जारण विहीन, बिना षडगुण बलि जारण करके, गंधक जारण षडगुण करके ये कभी भी गद गण बारना रोगों का नाश नहीं करता है। टू नेति नून, डिजीज क्योरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मर्क्यूरी कैन ओनली बी अपीयर आफ्टर 6 टाइम्स sulfur digestion, no matters whether the mercury is अष्ट संस्कारित और हिंगुलत्थ। यानी कि पारद चाहे हिंगुलत्थ लिया जाए चाहे अष्ट संस्कृत लिया जाए, अगर इसको षडगुण बलि जारण नहीं किया गया है तो रोग का नाश ये नहीं कर पाता। MCQ related with today's topic, which of the following components is or are not required for जारण? जारण के लिए इनमें से कौन सा जरूरत नहीं है? पीड़ा द्रव्य जरूरत नहीं है, यंत्र का जरूरत नहीं है,
द्रुतग्रास का जरूरत नहीं है या इनमें से किसी का भी जरूरत नहीं है। For therapeutic purposes, which one is necessary? 6 times Mandaka 6 times Abraka Sattva 6 times Swarna and all of the above. In today's session number 42, we discuss on various dharana definitions, result of dharana on therapeutics and rasayana purposes, subjective questions, define dharana and result of dharana process. Thank you.